Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos और आप जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं। पर वीडियोस कंटिन्यूसली आप देखते रहिए, जिस भी सब्जेक्ट का है आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स से आप अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। Children, as you know that in our previous video we were doing poem of your English textbook. The name of the poem is 20 Frogs. Children, I hope you have watched that video. आपने जरूर देखा होगा वो वीडियो. So in today's video we will be doing the exercise of this poem. We have already completed the poem, the explanation of the poem, the recitation of the poem we have done, and in today's video we will do the exercise. Okay, so let's start the exercise, but before that we will revise what we have done in our previous video. हमने अपने previous video में क्या पढ़ा था उसे एक बार हम revise कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये poem था जिसका नाम है 20 Frogs. Children, this poem is about 20 frogs who went to school. As you go to school, आप जैसे स्कूल जाते हो, अभी नहीं जा रहे हो, but you go to school. तो जैसे आप स्कूल जाते हो वैसे ही इस पोयम में 20 frogs हैं जो कि स्कूल जाते हैं. 20 frogs they went to school. And where is the school? Where is their school? Their school is besides a pool, besides a beautiful pool. उनका स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है? एक प्यारे से पूल के पास. The school is located next to a beautiful, a pretty pool. और फ्रॉग्स हैं तो उनको पूल तो चाहिए ही, तो स्कूल जो है वो पूल के बिल्कुल साइड में है. वो स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं स्कूल? दे गो टू स्कूल, दे ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म लाइक यू डू. आप स्कूल जाते हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, वैसे ही ये फ्रॉगीज भी जब स्कूल जाते हैं तो दे वेयर यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म पहनते हैं. क्या पहनते हैं? दे वेयर क्लीन वेस्ट एंड ग्रीन कोट. एक साफ सुथरा वेस्ट पहनते हैं और ऊपर से ग्रीन कलर का कोट पहनते हैं. द यूनिफॉर्म इज क्लीन वेस्ट एंड ग्रीन कोट. So they go to school, they went to school, they wearing their uniform. अपना यूनिफॉर्म पहनकर ये गए थे और ये स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहते हैं. They think that they must reach school on time. इनका जो स्कूल का रूल है वो ये है कि टाइम पर स्कूल पहुंचना है. So they say that they must reach school on time. And in school they first study and then they play. ये स्कूल में पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ये खेलते हैं. As you do, जैसा कि आप भी करते हो, है. तो they reach school on time, they study first and then they play. And this is the rule of their school. यही इनके स्कूल का रूल है. And they follow this rule. ये इस रूल को फॉलो करते हैं. ये स्कूल टाइम पे पहुंचते हैं. They reach school on time and they first study and then they play. And their master, their teacher is Mr. Bullfrog. Bullfrog इनके टीचर हैं. And Mr. Bullfrog जो है वो कैसे हैं? He is a brave man. He is a brave frog. वो बहुत brave है. Bullfrog is brave. He is stern, which means he is very strict. He is brave and he takes classes in turn. Turn by turn he takes classes. A bullfrog is brave, bullfrog is stern and he takes classes in turn. Bullfrog is their teacher. उनके टीचर हैं bullfrog. Who is bullfrog? Bullfrog is a large size frog. मैंने आपको बताया था बड़े साइज का फ्रॉग होते हैं with deep loud voice. आवाज थोड़ी सी लाउड होती है. So Mr. जो bullfrog है, he is the teacher and he is strict, he is courageous, he is brave. ये क्या पढ़ाते हैं बुलफ्रॉग? बुलफ्रॉग taught them how to be nobly strive, how to work honestly. Mr. Bullfrog taught them to work honestly. Bullfrog taught them to work honestly and also how to leap, how to jump and how to dodge a blow from
how to dodge a blow of stick from bad boys. The sticks that bad boys throw at them. वो क्या क्या सिखाया मिस्टर बुलफ्रॉग ने? मिस्टर बुलफ्रॉग taught them to work honestly. He also taught them to leap, to jump, and to dodge a blow from the stick thrown by bad boys. Okay, from the sticks that bad boys throw at them. How to dodge a blow from the stick that bad boys throw at them. These are the things taught by Mr. Bullfrog. And when these 20 froggies they grew up, they also became bullfrogs. जब ये बड़े हुए ये जो froggies हैं 20 froggies जब बड़े हुए तो ये बड़े होके ये भी bullfrog बने. They also became bullfrog and they also taught what they had been taught. उन्होंने भी फिर वो पढ़ाया जो उनके टीचर ने उनको पढ़ाया था. So this was the पोएम. ये पूरा पोएम था कि किस तरह से फ्रॉग्स जो है वो स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या पहन कर जाते हैं, उनका स्कूल कहाँ पर है और वो स्कूल में क्या सीखते हैं, उनके टीचर कैसे हैं, उनके टीचर कौन है, ये सब हमने इस पोएम में पढ़ा. तो अब बारी है इस पोएम के एक्सरसाइज की. आज हम करेंगे इस पोएम का एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. So the first part is comprehension. First part is comprehension. First part है comprehension और उसमें है answer the following questions. Answer the following questions. This is the first part of the comprehension. Answer the following questions. Children, the first question is, where did the 20 froggies go? First question क्या है? Where did the 20 froggies go? 20 froggies कहाँ जाते हैं? 20 froggies कहाँ जाते हैं? They went to school. Question हम पहले लिखेंगे, where did the 20 froggies go? Where did the 20 froggies go? Where did the 20 froggies go? ये जो 20 froggies हैं ये कहाँ जाते थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? They went to school. 20 froggies went to school. पहली लाइन में है ना पोएम की, the 20 froggies कहाँ गए? Went to school. The 20 froggies went to school. 20 froggies कहाँ गए? 20 froggies went to school. Where did the 20 froggies go? Answer is the 20 froggies went to school. Go का क्या हो गया? Went, past tense हो गया. The 20 froggies went to school. Okay? 20 froggies school there. Question number 2. What are the froggies wearing? What are the froggies? What are the froggies wearing? Now you have to tell them. Now you have to tell the uniform of the froggies. ये froggies क्या पहने थे? ये जब स्कूल गए थे तो ये क्या पहने थे? What are the froggies wearing? उन्होंने क्या पहना हुआ है? What are the froggies wearing? Froggies ने क्या पहना हुआ है?
तो क्या पहना हुआ है फ्रॉगीज ने? द फ्रॉगीज वर वेयरिंग क्लीन वेस्ट विथ ग्रीन कोट. ओके, व्हाइट क्लीन वेस्ट विथ ग्रीन कोट. They are wearing neat vest with green coats. They are wearing clean vest with green coats. The 20 froggies are wearing, the 20 froggies are wearing clean vest and green coat. Green coat. Okay. What are the froggies wearing? What are the froggies wearing? Answer is the 20 froggies are wearing clean vests and green coats. The 20 froggies are wearing clean vests and green coats. जो 20 फ्रॉगीज है वो क्या पहने हुए हैं? वो क्लीन वेस्ट पहने हैं और ग्रीन कलर का कोट पहना है उन्होंने. ठीक है, क्या पहना है? क्लीन वेस्ट पहना है और ग्रीन कोट्स पहना है. आपको हम पढ़ा ना, उसमें क्या है कि the 20 froggies are wearing clean vest and green coats. ठीक है, next let's do the next question. Okay, next question is next question is, which rules do the froggies follow in school? Which rules do the froggies follow in school? ये जो फ्रॉगीज हैं ये स्कूल में कौन सा रूल फॉलो करते हैं, कौन सा रूल ये मानते हैं? कौन सा रूल मानते हैं? They follow two important rules. One is to be always on time, and second is to first play and then study. To first play and then study. These are the two rules that froggies follow in their school. Okay. So let's write the question first. Which rules? Question number 3. Which rules do the froggies follow? Which rules do the froggies follow in school? In school. Okay, which rules do the froggy follow in schools? You should know how to read the question. Question भी आपको पढ़ने आना चाहिए, तो पढ़ लेते हैं. आप मेरे साथ साथ आप पढ़ सकते हैं. You can read with me. Which rules do the froggies follow in school? So answer is they follow कौन से रूल्स? फॉलोइंग रूल्स लिख लेते हैं पहले. फॉलोइंग मतलब हम नीचे बताने वाले हैं कौन से रूल्स. दे फॉलो फॉलोइंग रूल्स. कौन कौन से रूल्स? फॉलोइंग मतलब जो अभी हम बताने वाले हैं. अभी जो हम बताने वाले हैं, पहला क्या? टू बी ऑलवेज ऑन टाइम. टू बी ऑलवेज ऑन
टाइम। पहला रूल क्या फॉलो करना है? टू बी ऑलवेज ऑन टाइम, टू रीच स्कूल ऑन टाइम, मस्ट बी ऑन टाइम। सो फर्स्ट रूल दे फॉलो इज टू बी ऑलवेज ऑन टाइम, हमेशा समय पे पहुंचना। और दूसरा, टू स्टडी फर्स्ट एंड देन प्ले। ठीक है, फर्स्ट स्टडी एंड देन प्ले। टू स्टडी फर्स्ट एंड देन प्ले, and then play. Okay, these are the two rules that froggies follow in their school. ये अपने स्कूल में ये दो रूल्स फॉलो करते हैं। Which one? Read with me. They follow following rules. कौन कौन से रूल्स है वो? पहला, to be always on time, या आप बोल सकते हो टू रीच स्कूल इन टाइम, टू रीच स्कूल इन टाइम, या टू बी ऑलवेज ऑन टाइम, हमेशा समय पर पहुंचना। दूसरा, टू स्टडी फर्स्ट एंड देन प्ले, पहले पढ़ाई करना फिर खेलना। टू स्टडी फर्स्ट एंड देन प्ले, टू स्टडी फर्स्ट एंड देन प्ले, मतलब टू स्टडी फर्स्ट मतलब पहले पढ़ना, देन प्ले, उसके बाद खेलना। So these are the two rules that froggies follow in their school. Okay. Now question number 4. Question number 4. What did Master Bullfrog teach the little froggies? Sorry. Bullfrog teach the little froggies. Now children, the question is, read after me if you want to read. What did Master Bullfrog teach the little froggies? Children, here see, little word is written. Why? Because bullfrog means big frog, bullfrog means large frog. तो यहाँ पर उसको ऑपोजिट करके लिखा है little froggies. तो what did Master Bullfrog teach the little froggies? मास्टर बुलफ्रॉग जो है वो लिटिल फ्रॉगीज को क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? आपको बताना है कि मास्टर बुलफ्रॉग जो है वो छोटे छोटे जो फ्रॉग्स हैं उनको वो क्या सिखाते हैं या उनको वो क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नीचे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रही हूँ। ठीक है, पूरा आंसर आएगा नहीं इसलिए मैं ऊपर वाले को मिटा देती हूँ। Let me write this. और I will write the question now. मैं ऊपर ही लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है। Question number 4, I will write it here. The question is, what did Master Bullfrog? What did Master Bullfrog teach the little froggies? Teach the little froggies. What did Master Bullfrog teach little froggies? तो उन्होंने क्या क्या सिखाया मास्टर बुलफ्रॉग ने? मास्टर बुलफ्रॉग ने सिखाया कि हाउ टू वर्क नोबली, कैसे ईमानदारी से, कैसे ऑनेस्टली काम करना है, हाउ टू स्ट्राइव नोबली, हाउ टू वर्क ऑनेस्टली, एंड हाउ टू लीव,
हाउ टू डॉज द ब्लो ऑफ स्टिक थ्रोन बाय बैड बॉयज। ठीक है, जो बैड बॉयज है वो किस तरह से जब अगर वो आपके ऊपर स्टिक फेंकते हैं, मतलब उन फ्रॉग्स के ऊपर स्टिक फेंकते हैं, तो कैसे उससे बचना है, डॉज करना है, क्विकली मूव करना है अगर कोई स्टिक फेंकता है तो। ठीक है, तो मास्टर बुल फ्रॉग टॉट द फ्रॉगीज टू वर्क ऑनेस्टली। पहले तो ईमानदारी से काम करना सिखाया। ठीक है, देन सिखाया एंड हाउ टू लीप एंड डाइव, कैसे लीप करना है, कैसे डाइव करना है। डाइव मैंने आपको बताया था, जब आप जंप करते हो पानी में तो पहले आपका सिर वाला पार्ट जाता है, देन आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डाइविंग। तो मास्टर बुल फ्रॉग ने क्या सिखाया, हाउ टू लीप एंड डाइव। और क्या सिखाया, हाउ टू डॉज अ ब्लो ऑफ स्टिक थ्रोन बाय बैड बॉयज। ये 3 चीजें सिखाई है ना। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, मास्टर बुल फ्रॉग, मास्टर बुल फ्रॉग, मास्टर बुल फ्रॉग टॉट द फ्रॉगीज, मैं यहां हो जाती हूं TAUGHT, टॉट द फ्रॉगीज, taught the froggies to work honestly. ठीक है, पहला क्या सिखाया, मास्टर बुल फ्रॉग taught the froggies to work honestly. ठीक है, पहला चीज क्या सिखाया, to work honestly. Then and यहाँ full stop नहीं है, and how to leap and dive, and how to leap and dive, leap and dive, ये सिखाया। He also taught them, he also मतलब ये भी सिखाया, he also taught them how to dodge a blow, how to dodge a blow, how to dodge a blow from stick thrown by bad boys, from stick thrown by bad boys, thrown by bad boys। आप बैड बॉयज हो? नो, नहीं ना। सी, इसको आप 3 पार्ट्स में बोल सकते हो। आपको ये लॉन्ग लग रहा है बट दिस इज नॉट लॉन्ग, आप ध्यान से पढ़ोगे, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, मास्टर बुल फ्रॉग टॉट द फ्रॉगीज, पहला टू वर्क ऑनेस्टली, दिस इज व्हाट ही टॉट, एंड हाउ टू लीप एंड डाइव, ये 2 चीजें सिखाई है। ही ऑल्सो टॉट देम हाउ टू डॉज अ ब्लो फ्रॉम स्टिक, और वो स्टिक कौन फेंक रहा है, थ्रोन बाय बैड बॉयज। ओके, ये 3 चीजें इसमें, आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट लाइक अ पैराग्राफ। इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, इसको पैराग्राफ में भी, पॉइंट्स में और पैराग्राफ दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, मास्टर बुल फ्रॉग टॉट द फ्रॉगीज टू वर्क ऑनेस्टली एंड हाउ टू leap and dive. Okay, master bullfrog taught the froggies to work honestly and to how to leap and dive. दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज सीखा, he also taught them how to dodge, आपको मीनिंग मैंने बताया था डॉज का, how to dodge a blow from stick, how to dodge a blow from stick thrown by bad boys, जिसे कि बैड बॉयज फेंकते हैं फ्रॉग्स के ऊपर।
ठीक है, दिस इज व्हाट इज टॉट बाय मिस्टर बुलफ्रॉग। मिस्टर बुलफ्रॉग ने उनको ये चीजें सिखाई थी। एक बार हम फिर से पढ़ लें। मास्टर बुलफ्रॉग टॉट द फ्रॉगीज टू वर्क ऑनेस्टली and how to leap and dive. He also taught them how to dodge a blow of stick thrown by bad boys. ठीक है, इसको हम, ये आंसर हो गया हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट, now the second part of comprehension is match the words in column A with the related words in column B. आपको मैचिंग करना है दो कॉलम से, कॉलम A एंड कॉलम B. You have to match the words of column A with the related words of column B. मतलब कॉलम A के जो वर्ड्स है उनसे जो रिलेटेड वर्ड्स कॉलम B में है उनके साथ आपको इसे मैच करना है। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको मैच करना है। गॉट इट? आपको रिलेटेड वर्ड्स के साथ उसको मैच करना है। सो लेट्स डू दिस। आप यहां पे मैं लिख दे रही हूं मैच द कॉलम्स, मैच द वर्ड्स, मैच द वर्ड्स कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, अब यहां पे जो वर्ड्स है उसको हम देखते हैं। पहला है क्लीन, नंबर 2 है पूल, नंबर 3 है स्टडी, नंबर 4 है ब्रेव, नंबर 5 है प्ले एंड नंबर 6 है डाइव। ओके, दीज आर द वर्ड्स। ये कॉलम ए के वर्ड्स हैं। क्लीन, पूल, स्टडी, ब्रेव, प्ले, डाइव। अब हम बी साइड के देख लेते हैं। यहां पर पहला है स्विम, नंबर 2 है करेजियस, टाइडी, enjoy, pond, and last is learn. चलिए फिर से swim, the word is swim, courageous, this word is pronounced as courageous, word is courageous. Tidy, this is tidy, this is enjoy, this is pond, and this is learn. Okay, got it? Swim, courageous, tidy, enjoy, pond and learn. अब हमें इसे मैच करना है। चिल्ड्रन, रिलेटेड वर्ड है, मीनिंग जरूरी नहीं है कि उसका मीनिंग हो, बट द वर्ड्स आर रिलेटेड, वो आपस में रिलेटेड हैं। तो पहला वर्ड है हमारा क्लीन। फर्स्ट वर्ड इज क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, है ना? क्लीन मीन्स द थिंग विच इज नॉट डर्टी। तो उसका रिलेटेड वर्ड क्या होगा? रिलेटेड वर्ड इज टाइडी। क्लीन का मतलब हुआ टाइडी। टाइडी का मतलब ही होता है साफ सुथरा। जैसे क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, वैसे ही टाइडी का मीनिंग भी होता है साफ सुथरा। सेकेंड वर्ड है हमारा पूल। पूल मतलब पानी जो होता है, छोटा सा प्लेस जिसमें कि पानी हो, स्मॉल एरिया इन विच देयर इज वाटर, जो पॉन्ड के जैसा हो। पूल इज रिलेटेड विद वाटर एंड पॉन्ड इज ऑल्सो अ प्लेस विद वाटर। दोनों वाटर बॉडीज है, तो पूल को हम मिलाएंगे किसके साथ? पॉन्ड के साथ। पूल एंड पॉन्ड। ओके, पूल एंड पॉन्ड। देन थर्ड इज स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है लर्न, सीखना ना। स्टडी रिलेटेड, नॉट मीनिंग बट इट इज रिलेटेड। स्टडी एंड लर्निंग, पढ़ना और लर्न करना, सीखना। ठीक है। देन द वर्ड इज ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है
करेजियस, हिम्मत वाला, ठीक है, करेजियस जिसमें हिम्मत होती है, करेजियस। देन डाइव का रिलेशन, प्ले है, प्ले का रिलेशन है एंजॉय। आप खेलते हो तो आप एंजॉय करते हो, प्ले इज रिलेटेड टू एंजॉय। एंड फाइनली डाइव इज रिलेटेड टू स्विम। जब स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के साथ ये वर्ड डाइव रिलेटेड है। ओके, तो वी हैव मैच दीज वर्ड्स। आप एक बार इसको हम फिर से देखेंगे। फर्स्ट यू लुक एट द वर्ड्स, हाउ दे आर मैच्ड, व्हाट आर द रिलेटेड वर्ड्स। ओके, चलिए इसको हम फिर से हम देख लेते हैं एक बार। इसको हम देखेंगे फिर से। क्लीन, टाइडी, क्लीन और टाइडी रिलेटेड वर्ड है, सफाई से संबंध है। पूल एंड पॉन्ड, दे आर रिलेटेड विद वाटर, तो ये रिलेटेड है। स्टडी एंड लर्न, पढ़ाई करना और लर्न करना, सीखना, बोथ आर रिलेटेड वर्ड, स्टडी एंड लर्न। ब्रेव एंड करेजियस, बहादुर जिसको बोलते हैं हिम्मत वाला, ब्रेव एंड करेजियस। प्ले एंड एंजॉय, प्ले का संबंध एंजॉयमेंट से होता है, खेलना, एंजॉय करना, मजे करना। और डाइव इज रिलेटेड टू स्विम, डाइव इज रिलेटेड टू स्विम। सो वी हैव मैच दिस वर्ड्स, ये हमने मैच कर लिया, ठीक है। क्लीन, टाइडी, पूल, पॉन्ड, स्टडी, लर्न, ब्रेव, करेजियस, प्ले, एंजॉय, डाइव एंड swim. These are related words. Then children, you have one more exercise, that is let us enjoy the poem. Recite the poem with action and expression. Children, I have already told you in my previous video that you have to learn the poem. आपको ये poem learn करनी है, which is also written in the exercise. आपको कहा गया है recite the poem with action and expression. So first you have to learn. याद होगा तो आप अच्छे से recite कर पाओगे और expressions भी दे पाओगे। करेक्ट एक्सप्रेशंस आपके तभी आएंगे जब आपको ये पोयम याद होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज the word school and pool rhyme. School and pool, school, pool, school, pool, दोनों राइमिंग वर्ड है, दोनों का साउंड सेम आता है। स्कूल, पूल, राइम्स हो रहा है, राइम का मतलब होता है सेम साउंड आती है। ओके, साउंड है। स्कूल, पूल आता है ना, स्कूल, पुल, पूल है, स्कूल, पूल, स्कूल, पूल, राइमिंग आ रही है। सो राइट 4 सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको ऐसे ही 4 सेट्स ढूंढने हैं पोएम में से जिनके की राइमिंग वर्ड्स हैं, जिसमें की राइमिंग वर्ड्स हैं। आपको पोएम में से ऐसे 4 जोड़े 4 वर्ड्स ढूंढने हैं जिनकी राइमिंग होती है। सो लेट्स सी। पहला हम देखेंगे आपके पोएम में से ही, जहां आप देखिए आपकी बुक में ही है जो पोएम है, उसमें देखिए जहां पे उन्होंने पहना हुआ है 20 लिटिल कोट्स ऑफ ग्रीन, 20 वेस्ट ऑल नीट एंड क्लीन। ग्रीन, क्लीन, ग्रीन, क्लीन। तो हम लिखेंगे पहला राइमिंग वर्ड है हमारा ग्रीन, क्लीन, ग्रीन, क्लीन, ग्रीन, क्लीन। नेक्स्ट, that is how we keep the rule when we froggies go to school. Rule, school, rule, school, ये भी हो सकता है। rule, school. Spelling is not important, sound is important. Rule, school, ठीक है। Then we have strive, die. You can see, taught them how to nobly strive and also how to leap and dive. Strive, dive, strive, dive. S-T-R-I-V-E, strive and dive. Strive, dive. Then we have taught them how to dodge a blow from the stick that bad boys blow. From the sticks that bad boys throw. Blow, throw. Taught them how to dodge a blow from the stick that bad boys throw. Blow, throw. Blow, throw. Blow, throw.
froggies grew up fast, bullfrogs they became at last. Fast, last. Fast, last. चलो पहली 4 बोला था, देखिए आपके पास 5 हो गए, तो आप 5 आपके पास है, यू कैन राइट एनी 4. ग्रीन, क्लीन. रूल, स्कूल. स्ट्राइक, डाई. ब्लो, थ्रो. फास्ट, लास्ट. तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए फ्रॉम द पोएम. पोएम में से हमने ये राइमिंग वर्ड्स निकाले हैं. यू कैन राइट एनी 4 ऑफ देम. इसमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हो. चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम. हमारा ये पोएम खत्म हो गया है एंड देयर इज अ होमवर्क फॉर यू विच आई टेल यू इन योर ऑनलाइन क्लास. आपकी ऑनलाइन क्लास में मैं आपको होमवर्क बताऊंगी, ठीक है. तो ये हमारा जो है पोएम जो है यहाँ खत्म होगा. आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम. आपको मजा आया होगा पोएम में. ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है in your copy, in your notebook, and we will meet in a new video with a new chapter. Okay? Thank you.